Uh, Hello, good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and once again we meet for the another new lecture or the fourth lecture of our quality engineering. In the previous series of the lecture, we try to understand about the various things about the quality gurus, right? In the previous series of the lecture, we at least study the quality gurus and its contributions in the fields of the quality engineering. So we just recap all these things and try to discuss the one another new quality gurus in the field of the quality engineering and what they are trying to give their contributions and what is his contributions in the fields of the quality engineering. So let's start the discussions over the quality gurus. So in the previous series of the lecture, we discussed about the quality cycles and how the scenario will be changed from the 90s, 50s, and the quality one kind of the quality revolutions will be start in the field of the qualities from their one type we can say that they are kindly shifted towards the America to Japan's and how Japan is developed his own quality strategies and the quality improvement cycle for his manufacturing hub, right? So in the previous series of the lectures, we also discussed about the damming contributions. What is the damming contributions? What are the 14 damming principles in the field of the quality engineering with improving how we can improve the quality of the product with using the damming 14 principles. So we might be discussed and about the 14 principles letters, which is a certain kind of another new topic in the chapter number 2, which is the damming 14 principles, right? So we discussed the 14 principles very deftly in these chapters, but right now we are just focusing on the contributions of the dammings in the field of the quality. So what is happening during the dammings and what is he suggested for the from America to Japan? He is shifted to Japan's and they are giving some kind of their valuable remarks on the Japanese after World War II and how the Japanese economy is grown after the damming's contributions, which is the damming prize is also given for the best contributions in the field of the quality. The previously, which is only given to the organization, which is the damming prize, right? But right now, after few years ago, they are started to give the damming prize individually also, who is giving the phenomenal contributions in the field of the quality engineering. From the Indian organizations, the Tata Steel in the 2006 and the Mahindra and Mahindra tractors in the 2003, they are achieve this kind of the Nobel Prize of the quality, which is the damming prize. Then the second, which is the quality guru, which is the Kaoru Ishikawa, and we studies the Ishikawa's contributions with the help of the Ishikawa diagram, which is also known as fishbone diagram, or the we can also say that as a cause and effect diagrams. So he is also contributing with some of his contributions to how to reach at the one kind of the root level of the problems and how to solve the problems regarding the quality with using the basic fundamentals of the factors we are using during the manufacturing process. So this is the one of the examples of the qualities and cause and effect diagram. We can say that also the fishbone diagram. Then the third contributions of the quality guru in the manner of the Philip B. Crosby, what he has given his contributions in the field of the Philip B. Crosby, a corporate vice presidents and the directors of the qualities for the 14th era, and his contributions, which is saving like that, how to reduce the hidden cost of the offset cost and
विच इज़ अकर्ड ड्यू टू क्रिएट एज अ प्रॉपर एनवायरनमेंट। कैसे हम लोग जो है जो अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है, राइट, उन्होंने भी जो है एक तरीके से 14 पॉइंट्स जो है वो हमें बताए थे, जिससे जो है वो हम लोग क्वालिटीज़ को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो है वो क्वालिटी के बारे में जो है वो कमिटेड होना चाहिए। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स टीम हमें बनानी चाहिए। फिर उस टीम जो है वो पूरा एक एनालिसिस करेगी, कैसे जो है कितनी कोस्ट जो है हम लोग क्वालिटी के पीछे आज लगा रहे हैं, कैसे क्वालिटी का अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, कैसे सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं, right, how to take the corrective actions in the problems, then the progress monitoring। अब इसी चीज़ को जो है वो हमने कैरी फॉरवर्ड करना है। ये जो सिस्टम पूरा बना है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सेशंस के अंदर लाना है। देन वी हैव टू ट्रेन द सुपरवाइजर्स एंड द इंजीनियर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। हम लोग को एक ज़ीरो डिफेक्टिव डेज जो है उस तरीके से एक गोल तक पहुंचना है एंड इम्प्रूव द गोल्स। एंड वी हैव टू एनकरेज द पीपल्स एम्प्लॉयज टू टेल द मैनेजमेंट इज अबाउट द ऑब्स्टिकल्स, राइट, improving the qualities। then we also have to appreciate those who has participated। अब जो लोग इस पूरे क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम उनको जो है वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप इस प्रोसेस के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हम लोग जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूशन, हम जिस प्लेटफॉर्म के काम कर रहे हैं, हम जिस स्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, उस स्टेशन के अंदर भी हम लोग क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी हमारा जो कंट्रीब्यूशंस है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस जो है वो माना जा सकता है। देन the another discussion which is about the last point about the is 14 point, which is about the establish the quality councils to the communicates टू दी रेगुलर बेसिस। एक काउंसिल जो है वो होना चाहिए जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशंस एनवायरनमेंट जो है वो बना सके, और इससे क्वालिटी रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हमें डिस्कस कर सके। डू इट ऑल ओवर अगेन टू एम्फसाइज दैट द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस इज नेवर एंड। जो इस प्रोसेस को हमें इस तरीके से बनानी है कि वो प्रोसेस जो है वो किसी न किसी वक्त जो है वो बंद ना हो, बंद होने वाली प्रोसेस नहीं है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेसिंग है जो हमें प्रोडक्ट की निरंतर क्वालिटीज़ जो है वो इम्प्रूव करने में हमें हेल्प कर सकती है। देन द नेक्स्ट विच इज़ क्वालिटी गुरुज विच इज़ द तागुची हु इज़ बोर्न इन द January 1st in 1924। उनका जो बॉर्न हुआ था वो 1 जनवरी 1924 को हुआ था। हु इज़ ए वन काइंड ऑफ द इंजीनियर्स एंड द स्टेटिस्टिशियंस। फ्रॉम द 1950s ऑनवर्ड्स द टागुची इज डेवलप्ड अ मैथडोलॉजी फॉर 1950 से वो एक ही दिशा में काम कर रहे थे कि तागुची इज डेवलप अ मैथडोलॉजी फॉर अप्लाइंग ए स्टेटिस्टिक्स टू इम्प्रूविंग द क्वालिटीज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। कुछ ऐसा एक स्टेटिस्टिकल मैथडोलॉजी वो बनाने के पीछे काम कर रहे थे। द तागुचीज की आर्ग्यूमेंट वॉज दैट द कॉस्ट ऑफ द पुअर क्वालिटी गोज बियॉन्ड द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सच एज ए रीवर्किंग एंड द वेस्ट कोर्सेज। जो क्वालिटी के पीछे जो है कॉस्ट, एक बड़ा अमाउंट जो है कॉस्ट का उसके पीछे जा रहा है। जो हम लोग एक पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके उसके पीछे जो है एक रिवर्क और वेस्ट जनरेट कर से, वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होता है वहाँ से जो ओवरऑल प्रोडक्ट जो है उसका क्वालिटी के पीछे लगने वाला कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चरर हैव कंसिडरेट्स ओनली द कॉस्ट्स ऑफ द क्वालिटी अप टू द पॉइंट which is shipping out the product. The Taguchi is aims to qualify the cost over a lifetime of the product. Taguchi ये बोल रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ मैथडोलॉजी बनाना चाहिए जिससे जो है वो उसका एम क्या था, तो कि एक क्वांटिफाई कोस्ट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, लाइफ टाइम पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट। उसको हम लोग ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि वो लाइफ टाइम जो है उसके प्रोडक्ट की हम लोग क्वालिटी की गारंटी दे सकते हैं। The long-term cost to the manufacturer would include a brand reputations and the loss of the consumer satisfactions। इससे जो है वो एक ब्रांड रेपुटेशंस बढ़ेगा और एक तरीके से कि लॉस ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शंस जो है वो कम होगा, विच इज़ लीडिंग्स टू डिक्लाइनिंग द मार्केट शेयर्स। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द तागुची।
राइट। उन्होंने जो है वो एक तागुची एक्सपेरिमेंटल, जो हमारा एक पूरा एक चैप्टर है विच इज़ द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, DOE, वो जो है DOE डेवलप करने के पीछे जो पूरा कंट्रीब्यूशंस था, वो पूरा कंट्रीब्यूशंस जो था वो साइंटिस्ट थे तागुची। वो एक तरीके से हम उनको जो है वो एक तरीके से बहुत बड़े जो है वो स्टेटिस्टिशियंस जो है, मैथडोलॉजिकल स्टेटिस्टिशियंस जो है, हम लोग उनको बोल सकते हैं। अब जो हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं विच इज़ द जोसेफ एम जुरान। जुरान का कंट्रीब्यूशन कितना, तो जुरान का कंट्रीब्यूशन इतना ही बड़ा माना जाता है जितना जो है वो क्वालिटी के फील्ड में जो है जो कंट्रीब्यूशंस जो है वो डैमिंग सर ने दिया था, उतना ही कंट्रीब्यूशन, बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो जोसेफ एम जुरान का माना जाता है। So he is born in the December 20, 1904 and who is died in February 20, 2008, यानी 2008 के अंदर, बहुत इतना साल अभी नहीं हुआ है, उस दौरान जो है उनका एक तरीके से डेथ हुई थी। who is basically an American scientist, Joseph Juran is the internationally acclaimed quality guru। वो जो है वो एक तरीके से इंटरनेशनली acclaimed, हम उनको एक तरीके से एक रीजन के क्वालिटी गुरु नहीं बोल सकते, वो इंटरनेशनली जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने पहचाने हैं, ये क्वालिटी गुरु माने जाते हैं। सिमिलर्स टू द एडवर्ड डेमिंग, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जितना कंट्रीब्यूशंस जो है वो डेमिंग सर को जो है, जितना हम लोग क्वालिटी के कंट्रीब्यूशंस में हम लोग जितना उनको मानते हैं, उतना ही जो है वो इनको जो है वो माना जाता है। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द जापानीज मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वो उन्होंने एक तरीके से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग एटमॉस्फेयर जो जापानीज मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए बनाया था। तो जोसेफ जुरान्स बिलीव दैट द क्वालिटी इज डज नॉट हैपन बाय द एक्सीडेंट्स विच इज गिव राइज टू द क्वालिटी ट्रायोलॉजी। जुरान सर जो है वो ये हमेशा हमें एक तरीके से इस फील्ड के अंदर उनका कंट्रीब्यूशंस ऐसे माना जाता था कि क्वालिटी जो है वो किसी एक्सीडेंशियल मैनर से जो है वो जनरेट नहीं हो सकती है, राइट। क्वालिटी जो है वो किसी एक्सीडेंशियल फैक्टर से जनरेट नहीं हो सकती है। कल के कल क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट के अंदर डेवलप्ड हो जाए ऐसा नहीं है, तो आपके कुछ छोटे छोटे जो है वो स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। आपके उन्हीं छोटे छोटे जो स्टेप्स है वो जो है वो एक दिन आपके प्रोडक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो क्वालिटी रिवोल्यूशंस लेके आ सकते हैं। सो जुरान्स आइडियाज आर बेसिकली इन द क्वालिटी डेफिनेशन, उन्होंने क्वालिटी को डिफाइन करने से स्टार्ट किया। फिर ब्रेक थ्रू कंसेप्ट, उन्होंने बैक थ्रू कंसेप्ट दिया था। देन द इंटरनल कस्टमर्स जो है उनके बारे में उन्होंने कंट्रीब्यूशंस किया था। क्वालिटी ट्रायोलॉजी के बारे में बताया था। पैरेटो एनालिसिस, जो जैसे एक चार्ट है ना, पैरेटो एक तरीके से एक चार्ट होता है जो आपके प्रोडक्ट के जो क्वालिटीज़ है उसको ग्राफ में जो है क्वालिटी के मेजर्स जो है वो ग्राफ में इनपुट करके आपका कितना पैरेटो एनालिसिस हो सकता है, कितना क्लोज आपके रिजल्ट मिल सकता है, उनसे हम लोग जो है वो क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देन द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटीज एंड द क्वालिटी काउंसिल्स, जो बनाने में जो है इनका कंट्रीब्यूशंस जो है वो माना, बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशंस माना जाता है। तो क्वालिटी काउंसिल्स जो हैं वो इंटरनली कंपनी के अंदर जो है वो एक बनाई जाती है, और इससे जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस जो है वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के फील्ड पे ऊपर होता है। कि आप जैसे बेसिकली हम लोग ये बात कर सकते हैं कि क्वालिटी के अंदर एक छोटी सी चीज़ क्या है कि जो सबसे छोटा आदमी है, राइट, जो एक छोटा कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट के अंदर देता है, जैसे वो एक हेल्पर भी हो गया, तो वो जो है वो क्या अपना कंट्रीब्यूशंस क्वालिटी के लिए जो है वो दे सकता है, क्योंकि क्वालिटी जो है वो ईच एंड एवरी स्टेप्स एंड अब छोटे छोटे जो है वो एक स्टेप्स लेके उससे एक बहुत बड़ा क्वालिटी रिवोल्यूशंस जो है वो जनरेट हो सकता है। देन द लास्ट क्वालिटी गुरुज कंट्रीब्यूशंस इन द फॉर्म्स ऑफ द एरमेंड्स वेलिंग फेयरबहम, so who is born in April 6, 1922। इनका जो बॉर्न हुआ था वो 6 अप्रैल 1922 के अंदर उनका बॉर्न हुआ था, और उनका जो डेथ हुआ था वो 13 नवंबर 2014
ही वॉज एन अमेरिकन क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स एंड द बिजनेसमैन। ये जो है ये एक अमेरिकन जो है, बेसिकली वो अमेरिकन है, और उनका जो कंट्रीब्यूशंस था उस कंट्रीब्यूशंस जो है वो एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट, कैसे क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है उसमें उनका बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज था, और पेशे से वो बिजनेसमैन थे। तो फेगनबाउम इज कंसेप्ट्स ऑफ द टोटल क्वालिटी कंट्रोल। आपने TQM जो वर्ड है वो सुना ही होगा, राइट? दो द फेगनबाउम concept of the total quality control which is known as a total quality management, वो जो है वो आज total quality management के फॉर्म पे जो है वो आज जाना जाता है, which is combines the management methods and the economic theory with the organization's principle। वो उनके कंट्रीब्यूशंस के अंदर आज हम लोग बात करें तो उन्होंने जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर दो कंसेप्ट जो है वो कंबाइन किए थे। फर्स्ट, हु इज कंबाइनिंग, दे आर कंबाइनिंग द मैनेजमेंट मेथड्स, मैनेजमेंट के जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के पीछे के जो मेथड्स हैं, एंड द अनदर विच इज़ द इकोनॉमिकल थियरी। इससे क्या इकोनॉमिकल उनका एस्पेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। तो वो दोनों चीज़ को जो है उन्होंने पैरेलल करने की कोशिश की थी विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल। इनका जो है वो एक प्रिंसिपल था ऑर्गेनाइजेशनल्स, उस प्रिंसिपल के ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल को साथ लेके हुए उन्होंने ये जो है इकोनॉमिकल फैक्टर्स एंड मैनेजमेंट फैक्टर वो दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की, और एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जैसा जो है वो एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया। एंड नेक्स्ट विच इज़ दी डेविड ए ग्रेविन। तो डेविड ए गाविन इज द प्रोफेसर ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एट दी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो ये जो है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो प्रोफेसर्स हैं, whose contributions is in the forms of if the quality is to be managed, right? If the quality is to be managed, it must be understood first। तो इनका कंट्रीब्यूशन यही था कि आप अगर क्वालिटी को जो है वो मैनेज अगर तभी कर पाओगे, इफ़ द क्वालिटी इज़ टू बी मैनेज्ड, क्वालिटी तभी मैनेज हो पाएगी इफ़ यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वालिटी। सबसे पहले तो है वो क्वालिटी चीज़ क्या है, वो आपको जो है वो अपने हिसाब से पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ क्वालिटी। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स अबाउट द क्वालिटी। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी, हाउ कैन वी डिफाइन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। आप जब तक उसको क्लैरिफाई नहीं करोगे, आपकी वो फंडामेंटल्स क्लैरिफाई नहीं होंगे, तो उससे पहले जो है वो क्वालिटी को डिफाइन करना, आपको मैनेज करना, कंट्रोल तो बहुत की दूर है, आपको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा फिर आप मैनेज कर सकते हैं, राइट? अब कंट्रोल नहीं हो सकती जो चीज़, वो मैनेज करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले जो है वो आपको क्वालिटी आप थरोली जो है वो क्वालिटी के फंडामेंटल्स समझिए, क्वालिटी को समझिए, आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी इंपॉर्टेंस है उनको समझिए, तभी जो है वो क्वालिटी जो है वो मैनेजेबल हो सकती है। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द डेविड ग्रेविन्स। ही स्टडीज वन इंडस्ट्रीज विच वॉज एक्टिव इन बोथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। उन्होंने एक स्टडी किया था एक इंडस्ट्रीज़ का जो दोनों जगह पे चलती थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड दी जापान। द रूम एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज़, वो एक रूम एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज़ थी। एनालाइजिंग द प्रोडक्ट टू डिटरमाइन विच प्लांट इन विच कंट्री वेर टर्निंग आउट द हाइस्ट क्वालिटी। वो देख रहे थे कि किस देश के अंदर कौन सा प्लांट जो है वो हाइस्ट जो है वो टर्निंग आउट दे रहा है। देन ही एनालाइज्ड एवरी इवन स्टेप्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उन्होंने हर एक प्लांट के अंदर जो है उनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप को बहुत अच्छी तरह एनालाइज किया टू फाइंड द डिफरेंस दैट मेड इन द डिफरेंस। दोनों कंट्रीज़ के अंदर, दोनों प्लांट के अंदर क्या डिफरेंसेस आ रहा है उसको समझने के लिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एनालाइज किया। हिज फाइंडिंग्स वेर ऑफ्टन सरप्राइजिंग, सम थिंग्स दैट everyone thought which is guaranteed the highest quality such as the
exhaustive testings did not. While some things is rarely mentioned in the literature, such as the way the factory is dealt with the layoff and the seniorities, and the length of the production's runs, which is made as a big differences. Then the another quality guru, which is the Shiago Shingo, who is born in 1909 and died in the 1990s. The Shiago Shingo is born in the Saga city in the Japan. He has a Japanese industrial engineer who is distinguished himself as one of the world's leading experts on the manufacturing practices and the Toyota productive systems. ये जो है वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स थे जिनका कंट्रीब्यूशंस जो है वो पूरा वर्ल्ड जो है उनमें गिना जाता है, और एक लीडिंग एक्सपर्ट्स थे जो टोयोटा प्रोडक्टिव सिस्टम्स जिन्होंने डेवलप किए, उस डेवलपमेंट के अंदर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस जो है वो माना जाता है. द शियागो शिंगो इज़ नोन फॉर मोर इन दी वेस्ट देन दी जापान. इनको जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी यूएस, ब्रिटिश, उससे ज़्यादा जो है इनको जो है वो जापान के अंदर उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए जो है वो याद रखा जाता है. द शियागो शिंगो is strongly associated with the just-in-time manufacturing and was invented of. इन्होंने जो सबसे बड़ा inventions किया which is the just-in-time, the single-minute exchange of the die system in which a setup time are reduced from hours to the minute. Then the Poka-yoke, which is the mistake proofing, error proofing system. In Poka-yoke, the defect are examined, the production system is stopped and immediately feedback given so that the root cause of the problem is maybe identified and prevented from the occurring again. So this is the contributions of the quality guru of the Shiago Shingo, right? So आज के लेक्चर्स के अंदर हमने और जो है वो क्वालिटी गुरुज 5 to 6 क्वालिटी गुरुज के कंट्रीब्यूशंस के अंदर कंट्रीब्यूशंस को है वो आज समझने की कोशिश की है. आप ये पूरे लेक्चर को अगर एक बार ध्यान से और सुनेंगे तो आपको ये कंट्रीब्यूशंस को जो है वो आप डेप्थली समझ पाएंगे. इसके लिए बुक भी आपके पास अवेलेबल है, आप ये लेक्चर से भी समझ सकते हैं. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन से डाउट है कंट्रीब्यूशंस के बारे में तो आप अपना क्वेश्चंस जो है वो कमेंट सेक्शंस के अंदर मुझे पूछ सकते हैं. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू राइट योर एनरोलमेंट नंबर इन द कमेंट सेक्शन विच इज़ काउंटेड एज ए ऑनलाइन अटेंडेंस. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video.